So very firstly, congratulations for Hatim Dilruba, and also two of them also who are not here, that is Taapsee and Harshvardhan. So very firstly, I want to ask, how is this experience of coming again on OTT platform? Thank you so much. Thank you. I believe this question was directed at me, or is it a directed at me? Okay. So it feels great, it feels great to be on an OTT platform again. Netflix का दामाद तो मुझे वैसे ही बोलते हैं लोग. So this is my 5th association with them. It feels great. But it really does not matter, what platform the film is coming on. What matters is, the film, after almost having worked on it for, for months, and then, sitting on it for nearly more than a year and a half. It feels great to finally bring out something to the people. It's finally eventually made for people. So it's great that we are finally out there, and people will get an opportunity to watch something which we believe is of a very good quality, which is out and out entertaining, and something that you can definitely enjoy. Yeah. So, Viral, I want to ask you how this idea of Hatim Dilruba came to your mind. So, Ardhima, the story, the writer and the author of the story is Kanika Dhillon. She got me a concept, which at that time it was called Heer. The film was titled Heer, and she narrated this very beautiful story about a love story happening in a small town, which had a thriller element to it, and it was just hooked me completely. I mean, she narrated, and then even a month later, I was living with that story, and then I told her, look, I have to direct this film. This is like a really compelling story. So after which we kind of sat and ironed out a few things, and then we went and approached actors, and yeah, I mean, then we were lucky to have some really good talented cast on this film. We got Taapsee, we got Vikrant, we got Harsh, and great secondary cast lineup as well. And I think all in all, it was a great team, and we just kind of, everybody just added their bit to the film, and it just became what it is right now. आपने कास्ट की बात करी, तो एक क्वेश्चन ये भी है कि ये जो कास्ट है, ये जो 3 लोग हैं, हर्षवर्धन हो गए और विक्रांत हो गए और तापसी हो गई, ये जो कपल था, ये हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि साथ हमें ऐसे देखने को मिलेगा. सो ये आपको दिमाग में कैसे आया कास्ट देम फॉर दीज कैरेक्टर्स? सो हमने पहले आई थिंक तापसी को कास्ट किया था, बिकॉज तापसी हैड वर्कड विद कनिका एंड कलर येलो इन मन मर्जिया, एंड उनका एक they already had a bond, and I think Kanika ने तापसी को कहीं पर स्टोरी सुनाया था, and she was very keen कि वो करे इस फिल्म को. जब तापसी कास्ट हुई तो we realized that the kind of character जो रानी का किरदार प्ले कर रही है, it's slightly like she's an alpha female, in that sense. So we needed somebody to contrast that character. हम लोग को मतलब equals नहीं चाहिए था, हमको मतलब contrasting characters चाहिए थे, एक opposite type का कुछ चाहिए था, जिसमें ऐसा एक्टर हो जिसके एक तो एक्टिंग capability बहुत अलग, मतलब you had to have another level of acting capability, and you also needed somebody who would look the part, कि वो थोड़ा बेचारा सा भी लगे, थोड़ा boy next door लगे. So क्योंकि वो ह्यूमर के लिए इम्पोर्टेंट था, सिंपथीज के लिए इम्पोर्टेंट थे, और जो सरप्राइज आती है एंड में फिल्म में, उसके लिए भी उस हिसाब से भी अनअज्यूमिंग रहना चाहिए. So Vikrant was like an obvious choice. I mean, now when you look at the film, you wonder who else could have played this, because he is such a fine actor, and and there's so many notes and there's so many changes one had to do within the film as a character. Vikrant, we're happy we went with him. And then there was a casting of Harshvardhan Rane, who had to be exact opposite of what Vikrant is. He had to be the kind of guy who Rani aspires to. Most girls should, look at him and fall in love immediately. Like, somebody who, as an audience, you can fall in love with. You needed somebody physically very good looking, and yet being very sensitive. So that he's perfect falling in love material. And Harsh, I thought with Harsh we have a lot of freshness in that character, because we hadn't seen him for some time, and we also we had a huge fan following, so we said he's the ultimate lover boy in that sense. So it just kind of was a requirement of the story, and we evolved and we got all of them, and I'm just happy that we had such an amazing cast. And we are loving the chemistry also. और जैसा आपने कहा कि हम ये अब नहीं सोच सकते कि इसके अलावा ये कैरेक्टर कौन प्ले कर सकता था. विक्रांत प्लेइंग ऋषभ, ऐसा लग रहा है कि यही हो सकता था, इसके अलावा we can't see anybody else as ऋषभ. So विक्रांत, I want to ask कि जब ये आपके पास कैरेक्टर आया है, तो आपका
क्या रिएक्शन रहा, क्योंकि हमने आपको रियल लाइफ में, अगर मैं आपको एक ऐसे जज करूं तो इट फील्स लाइक कि आप बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सिंपल से इंसान है, लेकिन अब ये जो शेड निकल के आया है नेक्स्ट जो अदर हाफ ऑफ द मूवी है, उसमें आपका जो शेड निकल के आया है, और उसके अलावा पहला हाफ तो हमने बहुत एंजॉय किया, हम बहुत हंसे हैं, बहुत मजा आई है, लेकिन ये जो एक अलग शेड आपका दिखा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये जैसे आपने कहा, क्योंकि जनरली जो मेरा एक स्वभाव है या जिस तरह से लोग मुझे देखते हैं वो कभी एंटिसिपेट करते नहीं है कि ये कुछ यू नो जैसे ऋषु करता है ऐसा कुछ कर भी सकता है। तो आई थिंक एज विनिल सेड कि एक ऐसा ही कोई बंदा चाहिए था। एंड आई आई पर्सनली फील कि दैट दैट इज एन एडेड एडवांटेज, क्योंकि आमतौर पे लोग जैसे पर्सनली मुझे देखते हैं वो एंटिसिपेट करते नहीं है कि मैं कुछ थोड़ा ग्रे कर सकता हूँ या मैं एक आउट एंड आउट एंटागनिस्ट प्ले कर सकता हूँ। तो सॉरी सॉरी, आई थिंक आई लॉस्ट connection. Yeah, all right, sorry, am I audible? या So my reaction was very simple. जब मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि आमतौर पे वैसे ही लोग मुझे देखते नहीं है ऐसा, और एक छवि बन चुकी है। तो यहाँ पे एक मौका मुझे मिला है कि ये एक पोटेंशियली बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है अगर ये सही तरीके से बन गई तो। एंड आई न्यू कि ये अच्छी फिल्म बनेगी क्योंकि विनिल मैथ्यू ऑलरेडी बोर्ड पे थे। मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ पहले, एक एडवर्टाइजमेंट में हमने काम किया था साथ में। और जब विनिल जी ने मेरा नाम रेकमेंड किया और जब ये फिल्म मेरे पास आई, जब मैंने पढ़ी, एंड आई न्यू दैट द फिल्म वाज ऑलरेडी इन सेफ हैंड्स। तो उस चीज को पन्ने से उठा के पर्दे पे लाना, मतलब एक बहुत ही सक्षम हाथों में है वो चीज, तो मतलब मैं रिलाई कर सकता हूँ कम्प्लीटली। एंड फॉर ऑल सेल्फिश रीजन, क्योंकि ऐसा किरदार मेरे पास कभी आया नहीं है। लोगों की एक छवि मतलब मेरी एक छवि बन चुकी है लोगों के जहनों में। तो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी दैट आई रियली वांटेड टू बैंक ऑन, एंड आई थिंक I've got some great responses so far, क्योंकि वही है बात कि एंटिसिपेशन बिल्कुल होता नहीं है कि मेरे जैसे या मैं या मेरे जैसा कोई शख्स ऐसा कुछ कर सकता है। या एक्चुअली मतलब हमने मिर्जापुर में भी देखा है आपको, लेकिन उसमें भी आप बहुत स्वीट से, एकदम सिंपल से, इवन इफ यू हैव गन इन योर हैंड तब भी कैसे लगता है कि इतना रिलैक्स्ड है बंदा, एंड यहाँ पे एकदम ड्रास्टिक चेंज आया है, और वो ऐसा भी नहीं लग रहा है दैट यू आर एक्चुअली एक्टिंग, ऐसा लग रहा है दैट यू आर ऋषभ। कोई ये नहीं कह सकता कि विक्रांत ही प्ले कर रहे हैं ये कैरेक्टर, इतना ड्रास्टिक थैंक चेंज यू। है। आई पर्सनली लव योर एक्टिंग, आई पर्सनली और माय फेवरेट एक्टर टू। आई वाओ, हैव थैंक यू। broken with beautiful so many times just because of थैंक you. यू। So थैंक यू। I'm loving watching you like this. I थैंक यू। want to know तो एक चीज मैं कि ये बिल्कुल जोड़ना चाहूंगा। आई एम सॉरी अर्डिमा, आई जस्ट ऐड दिस थिंग, क्योंकि कनिका ने जो कहानी लिखी थी ना, और जो जो विनिल ने विजुअलाइज की थी और जो वो दुनिया क्रिएट करना चाहता था, उसमें बहुत सारे मल्टीपल टेक अवेज भी हैं साथ ही साथ। There are so many multiple takeaways for one to to make it their own. वो these are like loose ends that you leave out for the audiences, जो वो उन्हें अपना के अपना बना सके. So that is another very crucial element in our storytelling, at least for the kind of film that we are telling. So yeah, I think it was very interesting that way. I just wanted to add this thing. या बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे हैं जिसमें हमें गूज़बम्प्स आ गए हैं। मतलब कहते हैं ना कि बॉलीवुड में थ्रिलर नहीं आती, मर्डर मिस्ट्री नहीं आती, लेकिन ये देखने के बाद दे विल स्टॉप सेइंग लाइक दिस। तो आई वांट टू नो कि हाउ वाज योर बॉन्ड, हाउ वाज ऑफ स्क्रीन, कैसा रहा आपका काम विद तापसी एंड हर्षवर्धन? ऑफ स्क्रीन तो पागलपन था। एंड मैं जनरली आई एम वन ऑफ दोज बॉयज इन द रूम जो मतलब वो ग्रुप का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन थोड़ा साइड में रह रहे कि मजे कर रहे होते हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही था, और मैं जनरली ऐसे ही रहता हूँ। तो हमारे सेट पे जो पागलपन था, जो इतना इंटेंस काम करने के बाद और एक काउंटर बैलेंस भी होता है, बिकॉज यू रियली इतना मुश्किल हो जाता है, 12-16 घंटे काम कर रहे हो और आपको पता है कि आपकी कहानी कैसी है, इट रियली सक्स द सोल आउट ऑफ यू। तो बहुत जरूरी होता है कि सेट का माहौल थोड़ा सा एक काउंटर बैलेंस करे, क्योंकि वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता था कि एक ही स्टेट ऑफ माइंड में रहना, उसको सस्टेन करना इम्पॉसिबल है। तो आई थिंक विनिल एंड तापसी आर वेरी क्रूशियल एलिमेंट्स इन दिस केस, कि इन लोगों ने जो सेट का माहौल बनाए रखा था। और विनिल इनहेरेंटली बहुत फनी है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत इनक्रेडिबल है। तो अपने एक्टर्स को, अपने टेक्नीशियंस को और अपने आप को और इन तमाम चीजों को एक डायरेक्टर का काम सिर्फ डायरेक्ट करना नहीं होता है। मेरा मानना है कि वो एक आयरन फिस्ट के ऊपर किड ग्लव्स पहन के कैसे उसको आयरन फिस्ट को छुपा के और एक किड ग्लव पहन के पूरी यूनिट को संभालते हैं, वो विनिल में एक बहुत इनहेरेंट क्वालिटी है। एंड आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक विद विनिल लीडिंग द वे फॉर ऑल ऑफ अस।
तापसी एंड हर्ष, दे आर थॉरो प्रोफेशनल्स एंड दे आर सच फैंटास्टिक एक्टर्स. तो ये एक अनुभव जो मेरा रहा है, ये मुझे जिंदगी भर याद रहेगा हमेशा. So, Brennan, पहले हमने आपकी हंसी तो फंसी देखी, that was great. अब हम आपकी हसीन दिलरुबा देख रहे हैं, that is also great. और ये दोनों ही लव स्टोरीज तो हैं, लेकिन बहुत ही डिफरेंट जॉनर्स पे बनी हुई है. तो आप कौन सा जॉनर आप हम लोग के लिए लाने वाले हैं ऑडियंस के लिए, अब और कौन से सेट का आप दिखाने वाले? वो तो अब डिपेंड करता है कि कौन से राइटर्स मेरे पास आए स्क्रिप्ट लेकर और कौन से प्रोड्यूसर और एक्टर्स माने मेरी फिल्म करने के लिए. मैं तो ओपन रहता हूँ, एज लॉन्ग एज स्टोरी में कुछ इंटरेस्टिंग हो, कोई कुछ अलग हो, मैं तो खुश हो जाता हूँ कि उसको डायरेक्ट करने के लिए. तो मेरे हाथों में नहीं है, मैं सिर्फ हाँ या ना बोल सकता हूँ अगर मेरे पास कुछ मटेरियल आए तो मैं भी कोशिश करूंगा. इनफैक्ट इसके बीच में तो मैं ट्राई कर रहा था कि एक्शन फिल्म करने के लिए, ताकि आई ऑल्सो डोंट वांट टू गेट स्लॉटेड कि मैं ये चीजें करता हूँ. बट आई लाइक डीलिंग विद ह्यूमन रिलेशनशिप्स, वो मुझे बहुत मजा आता है. मुझे जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स में जो डायनामिक्स होती हैं एक दूसरे के बीच में, लव स्टोरीज, ये सब में मुझे डील करने में उसके बहुत शेड्स एक्सप्लोर करने में मुझे मजा आता है. और थोड़ी अगर सिनेमैटिक जो फॉर्म है उसके साथ कुछ खेलने का मौका मिले, कुछ एक्सपेरिमेंट करना, तो वो सब चैलेंजेस मुझे पसंद है. अगर कुछ बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेक्टेड स्टोरी आती है तो मैं बहुत बोर हो जाता हूँ, वैसे मैं आई डोंट फील लाइक गेटिंग इनटू इट. तो ऐसी कहानियां बहुत कम लिखी जाती हैं और मिलती हैं, तो जब मिलते हैं तो वी ऑलवेज लाइक टू टेक द ग्रैब इट विद बोथ आवर हैंड्स. तो या वो अभी मेरे हाथ में नहीं है, तो पता नहीं, अब 7 साल लगे दूसरी फिल्म बनाने के लिए, बस यही है कि अभी इतना टाइम ना वेस्ट ना करना पड़े अभी अगले इसके लिए. तो आनंद राय जी का नाम भी इस मूवी के साथ जुड़ा हुआ है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करना? So I think आनंद जी भी हैं कि he has a talent for coming out with interesting stories, to groom interesting writing and talent and directors and all those things. So you can see the body of work that the production house Color Yellow has, कि उन्होंने इतनी सारी फिल्में निकाली हैं, इतनी तरह तरह की फिल्में निकाली हैं. उन्होंने न्यूटन जैसी फिल्म भी बैक की है, तनु वेड्स मनु भी बनाई है, और फिर शुभमंगल सावधान. So I think he's just not a producer, he's also a very successful and talented director. So उनके पास जो एक सेंस है स्टोरीज की, कहानियों की, टैलेंट की. And I think and they also want to explore stories from in the heartland, जो एकदम ठेठ देसी जो stories होते हैं, they like to promote that as well, because उन्होंने वो दुनिया देखी है उनको, so I think it was a great support. It's always good if a producer is also a director, so he understands your issues and your your problems and what your requirements are. He never once even came on the set. I mean, like, he left me fully open to do whatever I wanted. There was never any sort of ki beta to aisa kar ya waisa kar. Matlab, it was just left open to me, so I got full freedom, and I'm very happy with that kind of freedom to do exactly what I wanted. And pretty much me and Kanika, we could drive it with just the things we needed, but no other problems to kind of deal with. Great. I have a last question for you, Vikrant. I want to know कि arranged marriage के बारे में, arranged marriage, real life में आप arranged marriage के बारे में क्या कहना चाहते हैं? और now that you will get married soon, so I want to know कि क्या है ये, आप arranged marriage का concept के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये मुझे नहीं पता कि when I will get married, तो I am surprised to know that I'll be getting married soon from you. मुझे खुद नहीं पता कब होगा ये सब. But on a serious note, I think to each his own. और मेरे परिवार में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अरेंज मैरिज की है. और अरेंज मैरिजेस हमारी सोसाइटी और हिंदुस्तानी हिस्ट्री में मतलब बहुत सालों से ये चलती आ रही है. मोस्टली इनफैक्ट लव मैरिजेस आर समथिंग जो अभी शुरू हुआ है पिछले आई थिंक 40-50 सालों में. तो आई थिंक टू ईच इज ओन, जिसमें सुकून मिले, जिसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो. अगर और आमतौर मतलब जनरली इन माय रियल लाइफ, क्या मैंने कभी रियल अरेंज मैरिज के बारे में सोचा है, नहीं सोचा? आई थिंक एक आध बार सोचा है मैंने. आई रियली डोंट माइंड, अगर नॉट दैट आई एम समवन हु विल गेट मैरिड इन एन अरेंज सेटअप, बट ऐसा मैंने थॉट तो दिया है कि हाँ ठीक है ना, अरेंज मैरिज भी कभी करने की सोच सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग इट. उसका भी एक अलग चार्म है. तो आई रियली डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट एनीथिंग. Thank you so much for the interaction and all the very best. Thank you. Bye.